آج کی تاریخ تک نہ اس بابری مسجد کے شہید کرنے والوں کو نہ کوئی سزا ملی، نہ ان کو کوئی مقدمہ دائر کیا گیا، برائے راست کسی کے اوپر کچھ مقدمات دائر کیے گئے۔ یہ جلسہ یہاں پر جو ہو رہا ہے، منجمد بچاؤ تحریک مسلسل 23 سال سے احتجاجی طور پر جلسہ کرتے آ رہی ہے۔ شہادت بابری مسجد، بازیابی بابری مسجد کے نام سے یہ جلسہ سب سے پہلے مغل پورہ پلے گراؤنڈ میں کیا جاتا تھا۔ 1999 تک یہ جلسہ مغل پورہ پلے گراؤنڈ میں کیا گیا، لیکن غازی ملت کے انتخابات ہارنے کے بعد سے منجمد بچاؤ تحریک کے مخالفین نے اس جلسے کو مغل پورہ پلے گراؤنڈ میں کرنے سے پولیس کے ذریعے رکوایا۔ 2002 یا 2003 میں 2002 کے بعد سے لے کر 2014 تک یہ جلسہ اعظم فنکشن ہال میں ہوتا تھا۔ پہلے مختلف ایک جلسہ نہیں ہوتا تھا بلکہ کئی جلسے ہوتے تھے شہر میں بابری مسجد کے عنوان سے، یعنی پورا اکتوبر نومبر دسمبر کے مہینے میں تقریباً شہر میں 30 تا 35 جلسے ہوتے تھے، اور ایک احتجاج ہوتا تھا، مسلمان روڈ پر نکلتے تھے، آ کر جلسے سنتے تھے اور ہندوستان کی حکومت پر دباؤ ڈالا جاتا تھا تاکہ اس کا فیصلہ جلد سے جلد آئے۔ لیکن یہاں کی جو نام نہاد خیانت ہے، وہ خیانت نے ایک سازش کرتے ہوئے منجمد بچاؤ تحریک کے احتجاج کو کمزور کرنے کے لیے پولیس کے ذریعے وہ احتجاج کو رکایا۔ احتجاج کو رکانے کے بعد سے وہ احتجاج کو پولیس کے ذریعے پرمیشن نہیں دیا گیا۔ ہم نے ہائی کورٹ کو رجوع ہوا، ہائی کورٹ میں ہم کو اجازت دی، اس کے باوجود کسی گراؤنڈ میں ہم کو پرمیشن نہیں دیا گیا۔ 2000 سے لے کر 2014 تک یہ جلسہ کسی شادی خانے میں منایا جاتا تھا، اعظم فنکشن ہال میں یا نہیں تو کوئی اور۔ لیکن اس بار بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ اس شادی خانے کے مالک کو بھی ڈرایا اور دھمکایا جا رہا ہے کہ تحریک کے میٹنگز کے لیے شادی خانہ نہ دیا جائے۔ یعنی اختلافات مجھ سے ہے، اختلافات میری جماعت سے ہے۔ اگر آپ سچے مسلمان ہیں، آپ خیر اپنے آپ کو تسلیم کرتے ہیں، تو بابری مسجد کی تحریک سے، بازیابی بابری مسجد کی تحریک سے کیا اختلافات ہے بتائیں۔ دوسری چیز، خیر ٹھیک ہے، وہ بیچارے شادی خانے کے مالک مجھے فون کیے، بہت معذرت خواہی کیے، کہنے لگے کہ میں آج بھی آپ کے ساتھ ہوں لیکن شادی خانے میں نہیں دے سکتا۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، یہاں پر اس اردو گھر میں اس اجلاس کو منعقد کیا گیا، لیکن سننے والوں کی تعداد وہی ہے۔ لوگ باہر میں بھی دیکھا کہ سڑکوں پر دور دور تک ٹھہر کر لوگ سن رہے ہیں۔ بابری مسجد کا جو مسئلہ ہے، بابری مسجد کے مسئلے کو طویل گفتگو ڈاکٹر خان صاحب کریں گے، لیکن میں سرسری طور پر کہتا چلوں کہ خاص طور پر یہ مسئلے کو اس دور میں ہندو اور مسلمانوں میں نفرت پیدا کرنے کے لیے انگریزوں کے دور میں اس کو پیدا کیا گیا۔ بابری مسجد جو ایک تبلیغ کی جاتی ہے کہ بابر نے تعمیر کی، بلکہ بابر کی تعمیر کردہ مسجد نہیں، بابر کے دور سے پہلے یہ مسجد کو تعمیر کیا گیا۔ لیکن انگریزوں نے اپنے دور میں ہندو اور مسلمان متحدہ طور پر ہندوستان سے لڑ رہے تھے، ہندوستان کی آزادی کے لیے لڑ رہے تھے، اس کو پیچیدہ بنانے کے لیے، دو فرقوں میں نفرت پیدا کرنے کے لیے یہ بابری مسجد کا جھگڑا پیدا کیا گیا۔ اور ایک دن رات میں بابری مسجد کی سیڑھیوں پر ایک مورتی کو رکھ دیا گیا اور اچانک سے یہ کہا گیا کہ یہ رام جنم بھومی ہے، یعنی یہاں پر رام کی پیدائش ہے، اس کا دعویٰ کیا گیا۔ 1950 میں پہلی مرتبہ یہ جھگڑا عدالت میں گیا اور آج کی تاریخ تک
عدالت میں فیض آباد کے ڈسٹرکٹ کورٹ میں گیا اور آج کی تاریخ تک عدالت کی پیچیدگیوں میں پڑ گیا. لیکن سب سے بڑا اس مقدمے کو دھکا اس وقت لگا جب بابری مسجد جہاں پر 400 سال تک مسلمانوں نے نماز پڑھی، ایک ایسا ہنگامہ کلیان سنگھ کی حکومت کے دور میں، پی وی نرسمہا راؤ کی حکومت کی دور میں، اس بابری مسجد کی جو عمارت تھی، اس عمارت کو ایک بہت پری پلان طریقے سے توڑا گیا. اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں کہ یہاں کی جو مسلم قیادت ہے، آج بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہے، ایوان پارلیمنٹ میں ٹھہر کر ہندو مسلم اتحاد کی باتیں کی جاتی ہے، فرقہ پرستی کی تقاریر کی جاتی ہے، تو یہ میں واضح کر دوں کہ یہ وہی ان کے والد تھے سلطان صلاح الدین اویسی صاحب، جنہوں نے ایک باضابطہ بابری مسجد رابطہ کمیٹی چل رہی تھی. وہ بابری مسجد رابطہ کمیٹی وہاں کی جو سنی اوقاف کمیٹی ہے، ان سے ہاتھ ملا کر یہ دونوں عدالت میں مقدمہ لڑ رہے تھے اور اتر پردیش کے محلوں میں وہاں پر گلی اور کوچوں میں اس کا جو واقعات پیش کیے جا رہے تھے، وہاں پر احتجاج کیا جا رہا تھا. لیکن جیسے ہی پی وی نرسمہا راؤ کون؟ یہ پی وی نرسمہا راؤ وہی جو سوامی رامانند تیرتھ کا چیلا تھا، یعنی آر ایس ایس کے ایک آئیڈیالوگ کی حیثیت سے کام کرنے والے سوامی رامانند تیرتھ کا چیلا پی وی نرسمہا راؤ کو یہ یقین تھا کہ بابری مسجد کو توڑ کر مندر اگر کبھی بن سکتی ہے تو صرف اور صرف میرے دور میں بن سکتی ہے. انہی کے اشاروں پر یہاں کی قیادت اچانک حیدرآباد کی قیادت دلی جاتی ہے اور اتر پردیش جاتی ہے. ایک بابری مسجد ایکشن کمیٹی کو تشکیل دیا جاتا ہے. آج انڈیا بابری مسجد ایکشن کمیٹی تشکیل دی جاتی ہے اور محترم سلطان صلاح الدین اویسی کو اس کا صدر بنایا جاتا ہے. جو بابری مسجد رابطہ کمیٹی مسلسل پہ کام کر رہی تھی، کئی سالوں سے کیس کر رہی تھی، اس کیس کے اوپر وہ بابری مسجد رابطہ کمیٹی میں درار ڈال کر ایک نئی کمیٹی تشکیل دی. تو انتشار کس نے پیدا کیا؟ انتشار پیدا کرنے والی شخصیت کا نام کیا تھا؟ انتشار پیدا کس نے کیا؟ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ محترم سلطان صلاح الدین اویسی نے پی وی نرسمہا راؤ کے اشارے پر ایک الگ کمیٹی بنائی اور جو لوگ سچی طور پر بابری مسجد کے لیے لڑ رہے تھے ان کو بات چیت کے لیے نہیں بلایا گیا. پی وی نرسمہا راؤ جب پرائم منسٹر بنا، پرائم منسٹر بننے کے بعد میں پرائم منسٹر سیل میں اسپیشل سیل بنایا گیا اور وہاں پر 2-3 مرکزی وزیر کو وہاں پر ذمہ داری قرار دی گئی کہ تم بابری مسجد اور رام جنم بھومی ٹرسٹ دونوں کے بیچ میں بات چیت کی جائے. بات چیت کے لیے بھی ان کو بلایا جا رہا تھا جو پی وی نرسمہا راؤ کے پپٹ تھے. پی وی نرسمہا راؤ کی حما پر جس نے آل انڈیا بابری مسجد ایکشن کمیٹی بنایا. آپ بتلائیے آج کہاں ہے آل انڈیا بابری مسجد ایکشن کمیٹی؟ جس دن بابری مسجد شہید ہو گئی، آل انڈیا بابری مسجد یعنی سنگھ پریوار، آر ایس ایس اور پی وی نرسمہا راؤ اس میں کامیاب ہو گیا، بابری مسجد کو شہید کروا دیا گیا اور اس دن آل انڈیا بابری مسجد ایکشن کمیٹی کا نام ختم ہو گیا. برائے نام بابری مسجد ایکشن کمیٹی تھی لیکن کوئی ایکشن نہیں ہوتا تھا. آج نوجوان نسل ہے، زیادہ بات نہیں، پچھلے صرف 10 سال کی گفتگو ہے کہ بابری مسجد رابطہ کمیٹی میں درار ڈال کر بابری مسجد آل انڈیا بابری مسجد ایکشن کمیٹی کیوں بنائی گئی؟ پہلا سوال تھا. یہ مسئلہ اتر پردیش کے مسلمانوں کا مسئلہ تھا. کیوں کیا بات تھی کہ حیدرآباد سے ایک ممبر آف پارلیمنٹ کو لے جا کر وہاں پر اتر پردیش کی قیادت سونپی گئی؟ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ پی وی نرسمہا راؤ نے اپنے ایک چہیتے آدمی کو وہاں پر دلی میں بٹھایا اور بات چیت جاری رکھی، سازشیں کی گئی اور 6 دسمبر 1992 کو بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا. بابری مسجد شہید ہونے کے بعد میں سارے ہندوستان میں احتجاج ہو رہا تھا. ہندوستان میں جب یہ احتجاج ہو رہا تھا تو یہ وہی محترم سلطان صلاح الدین اویسی دوردرشن پر اور اخبارات کے نمائندوں سے یہ کہنے لگے کہ ہم پی وی نرسمہا راؤ سے بات کر چکے ہیں کہ
کہ बाबरी मस्जिद अनखरीद बन जाएगी। आज वो बेचारे नहीं हैं, अल्लाह के पास जवाब दे रहे होंगे कि क्या क्या साजिशें की गई, क्या क्या नेमतें हासिल की गई बाबरी मस्जिद की शहादत के लिए। एक नेमत तो ऐसी देकर गए कि उनकी औलाद खाकर भी बैठ, यानी 14 पुश्त भी अगर खाए तो वो कम नहीं होगी। अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं है, कई लोग इस बात से वाकिफ नहीं है कि बाबरी मस्जिद की शहादत 6 दिसंबर 1992 को होती है और तकरीबन 20 दिन के बाद, 20 या 25 दिन के अंदर डेक्कन मेडिकल कॉलेज को अफिलिएशन मिलता है। यानी डेक्कन मेडिकल, कोई मेडिकल कॉलेज कायम करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट से नो ऑब्जेक्शन लेना पड़ता है, उसके बाद में ऑल इंडिया मेडिकल काउंसिल से नो ऑब्जेक्शन लेना पड़ता है। आज मैं दावा करने के मौके में हूँ कि डेक्कन मेडिकल कॉलेज को जो अफिलिएशन दिया गया है वो सिर्फ और सिर्फ बाबरी मस्जिद पर खामोशी के इख्तियार करने के लिए डेक्कन मेडिकल कॉलेज को, यानी आप बतलाइए कि एक तरफ जो मुस्लिम क़यादत बाबरी मस्जिद को बचाने के लिए लड़ रही है, उसी मुस्लिम क़यादत को पीवी नरसिम्हा राव मेहरबान होते हैं और पीवी नरसिम्हा राव मेहरबान होकर डेक्कन मेडिकल कॉलेज का अफिलिएशन देते हैं सिर्फ 20 या 25 दिन के बाद में। और कई लोगों को कई चीजें मिली, शहाबुद्दीन को कुछ मिला, जफरयाब जिलानी को कुछ मिला, लेकिन याद रखो ये अल्लाह के पास जवाब देना है कि तुमने अल्लाह के घर का सौदा किया, अल्लाह के घर के मामलात में सौदा किया, खामोश बैठा, क़यादत का दावा करने वाली शख्सियत उस वक्त सारे हैदराबाद में टेलीफोन कर ये कह रहे थे कि एहतजाज करने की जरूरत नहीं है, मैं तयफून ले चुका हूँ। अगर आज हम ये बात कहते हैं तो लोग कहते हैं कि बाबरी मस्जिद का मसला भूल जाओ, कोई नई बात करो। मेरे भाई याद रखो, जो नस्लें, जो कौमें अपने पुराने दौर को भूल जाती हैं या अपने इबादत गाहों को भूल जाती हैं, वो नस्लों का, उन कौमों की आने वाली नस्लें बहुत तबाह ताराज हो जाती है, उनका फ्यूचर तबाह ताराज हो जाता है। बाबरी मस्जिद, ऑल इंडिया बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के सदस्य रहने के बावजूद ये कभी एक मर्तबा भी जाके कोई अदालत में कोई फैसले का मुकाबला नहीं किया, बल्कि उसको कमजोर करने की कोशिश की गई। और आज मसला ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हाथ में चले गया। बाबरी मस्जिद को शहीद हुए 23 साल हो गए, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी इस मसले को कोई उतनी जुस्तजू से नहीं चला रहा है। बस साल में एक मर्तबा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को बाबरी मस्जिद याद आती है, या इलेक्शन के करीब में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को बाबरी मस्जिद याद आती है। किसी मुकाम पर एक बड़ा जलसा करने के लिए बाबरी मस्जिद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को याद आती है, या कोई जाकर अपनी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो अरकान हैं उनको उस वक्त बाबरी मस्जिद याद आती है जब उनके कोई जाती कारनामे या जाती कारोबार की फाइल कोई प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर या सेंट्रल मिनिस्टर में रहती है। बड़े अफसोस की बात है, आज बड़ी बड़ी दावे करने वाली शख्सियतें यहाँ पर हैं। मैं ये तमाम से सवाल करता हूँ, असदुद्दीन ओवैसी से, अकबरुद्दीन ओवैसी से, हिंदुस्तान के जितने मुस्लिम लीडर थे उनसे सबसे सवाल करता हूँ कि सितंबर 30, 2010 को एक फैसला आया था, लखनऊ के हाई कोर्ट का फैसला आया था, जस्टिस एसयू खान, सुधीर अग्रवाल और डीवी शर्मा का फैसला आया था। बाबरी मस्जिद की 1500 गज जो जमीन है उसको 3 टुकड़े कर दिया गया, एक सुन्नी वक्फ बोर्ड को दे दिया गया, एक टुकड़ा यानी दो टुकड़े जो है वो गैर मुस्लिम में दे दिए गए और एक टुकड़ा सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया गया। उस फैसले के खिलाफ में फैसला आने से पहले, यानी फैसला आने से 1 महीना पहले हैदराबाद की मुस्लिम क़यादत, यहाँ के जितने भी लोग थे, रहीम कुरैशी आज जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी बने बैठे हैं, तामीर मिल्लत के जो सदर हैं, उनसे मेरा सवाल है कि 1 महीना पहले इन्होंने बयान दिया कि अगर फैसला कुछ ऐसा आएगा, मुसलमानों के खिलाफ फैसला आएगा तो लखनऊ बेंच का हाई कोर्ट का फैसला अगर आपके खिलाफ आएगा तो आप लोग एहतजाज मत करो। तो ये वैसी ही बात हो गई कि जिस तरीके से जब भी कोई मीटिंगें होती थी, सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब
ऑल इंडिया बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के सदर की हैसियत से जब पीवी नरसिम्हा राव के ऑफिस में पीएम ऑफिस में मीटिंग्स होते थे, एक तरफ विश्व हिंदू परिषद के लोग हुआ करते थे, बजरंग दल के लोग हुआ करते थे, बीजेपी के लोग हुआ करते थे, यानी बाबरी मस्जिद को तोड़ने के लिए सारी टीमें आती थी, और दूसरी तरफ जो नुमाइंदगी होती थी ऑल इंडिया बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी, वो नहीं जो असल बाबरी मस्जिद को बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, बल्कि वो लोग आया करते थे ऑल इंडिया बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के हर मीटिंग के बाद में बाहर निकल कर ये कहते थे कि हमारा मौक़िफ़ मजबूत है, बाबरी मस्जिद को कुछ होने वाला नहीं, हमने अपना दावा मजबूती से रखा है, कुछ होने वाला नहीं है। बाबरी मस्जिद को शहीद करने के लिए कार सेवकों की ट्रेनिंग दी जा रही थी, हिंदुस्तान के कोने कोने में ट्रेनिंग दी जा रही थी, बाकायदा तस्वीर टीवी में बताए जा रहे थे, हिंदुस्तान के बड़े बड़े अखबार में आ रही थी, लेकिन हमारी मुस्लिम क़यादत कभी ये कोशिश नहीं की कि हम भी उस मुकाम पर जाकर जमा हो, उत्तर प्रदेश में जाकर हम हमारी बाबरी मस्जिद को बचाने की कोई मुस्लिम क़यादत ने कॉल नहीं दिया, कोई मुस्लिम क़यादत ने बयान नहीं दिया कि मुसलमानों अब यह मसला अदालत में नहीं, ये मसला अब रोड पर तय किया जाएगा, जहां पर उनको भी हक है, हमको भी हक है, अगर वो परेड कर सकते हैं तो हम भी परेड कर सकते हैं, वो अगर हथियार रख सकते हैं तो हम भी हथियार रख सकते हैं। आओ 6 दिसंबर 1992 के दिन वहां पर सारे कार सेवक जमा हो रहे हैं और उनका नारा है कि एक धक्का दो, बाबरी मस्जिद को तोड़ दो। आज हिंदुस्तान की मुस्लिम क़यादत अगर 1992 में ये ऐलान दे देती कि मुसलमानों का मसला हमसे निकल चुका है, ये मस्जिद तुम्हारी, तुम इसकी हिफाजत करो, तो मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के 15 करोड़ मुसलमान बाबरी मस्जिद पर जाकर जमा हो जाते और बाबरी मस्जिद को शहादत से बचा लिया जाता। लेकिन तुम्हारी क़यादत, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की क़यादत, ऑल इंडिया बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की क़यादत ने उस हिंदुस्तान के मुसलमानों को गलतफहमी में रखा, हिंदुस्तान के मुसलमानों को नींद की गोली देकर सुलाया और बारहा इस बात की ये ऐलान करते रहा कि हमारा मौक़िफ़ कमजोर मजबूत है, हमारा मौक़िफ़। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की मीटिंग हुई, बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर को तोड़ी गई, 28 नवंबर के दिन मैं समझता हूं कि नेशनल इंटीग्रेशन की काउंसिल की मीटिंग हुई, सारे चीफ मिनिस्टर से, सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मुस्लिम क़यादत मौजूद थी, उस पर कोई एक आवाज नहीं उठाया, मैं समझता हूं सिवाय बनत वाला के किसी ने मुकाम पर आवाज नहीं उठाया। बनत वाला ने उठकर कहा कि बाबरी मस्जिद को शहीद करने के लिए साजिश की जा रही है, हम पीवी नरसिम्हा राव पर भरोसा नहीं करते, हम कल्याण जी पर भरोसा नहीं करते। अगर पीवी नरसिम्हा वाकई अगर बचाना चाहता था तो कल्याण सिंह की हुकूमत को बाबरी मस्जिद को कार सेवकों को जमा होने से पहले उसको अगर हटा देता तो मैं समझता हूं कि बाबरी मस्जिद हट जाती। जिस तरीके से मुलायम सिंह के दौर में, लालू प्रसाद यादव के दौर में एल.के. अडवाणी ने एक बहुत बड़ी रैली निकालकर कोशिश की थी कि बाबरी मस्जिद को शहीद कर देंगे, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने वार्निंग दी थी एल.के. अडवाणी को, अगर तुम बिहार में दाखिल होगे तो तुमको मैं गिरफ्तार कर लूंगा। बड़ी चैलेंज की बातें हुई, लेकिन जब एल.के. अडवाणी की रैली बिहार में घुसी तो लालू प्रसाद खालिद मुबारकबाद है हिंदुस्तान का सेकुलरिज्म का, अगर आज कोई नुमाइंदा है तो लालू प्रसाद यादव है मेरी नजर में। उन्होंने एल.के. अडवाणी को गिरफ्तार किया, एल.के. अडवाणी को गिरफ्तार करके उसको बॉर्डर पर लाकर छोड़ दिया, और उसी दौरान मुलायम सिंह यादव ने जब कार सेवा की कोशिश की गई, अंधाधुंध फायरिंग करते हुए कार सेवकों की लाशों से तालाबों को भर दिया, पैर को रेती के थैले बनकर उनको तालाबों में फेंक दिया गया। अगर ऐसी क़यादत, मजबूत क़यादत अगर मुसलमानों की भी होती, ये ऐलान कर देती, क्योंकि तुम मीटिंग में बैठकर सुन रहे थे, अगर तुम्हारे वालिद ये ऐलान कर देते कि मुसलमानों आज बाबरी मस्जिद शहीद होने जा रही है, कार सेवक 6 दिसंबर के दिन जमा होने वाले हैं, 1-2 कार सेवक नहीं, तकरीबन मैं समझता हूं कि 50,000 से 1 लाख कार सेवक वहां पर जमा हुए, 1-2 दिन में नहीं जमा हुए, बल्कि सारे हिंदुस्तान के जितने भी ट्रेन जा रहे थे, सारे उत्तर प्रदेश की तरफ जा रहे थे, सारे अयोध्या की तरफ जा रहे थे, सारे अयोध्या को सील कर दिया गया, फौज को दूर दूर हटा दिया गया, पुलिस को दूर दूर हटा दिया गया, और मुसलसल बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। अखबार ने यह लिखा कि पीवी नरसिम्हा राव जब बाबरी मस्जिद को शहीद करना सुबह में 9:30-10 बजे शुरू हुआ तो उसने अपने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में एक आह्वान लगाया और पूजा करते रहा जब तक कि पूरी बाबरी मस्जिद को शहीद नहीं कर दिए। उसके सेक्रेटरी आकर ये कहे कि साहब बाबरी मस्जिद शहीद हो गई,
जब वो बमन उठा और उठकर उसने मीडिया के सामने आकर कहा कि मैं उस बाबरी मस्जिद को दोबारा उसके मुकाम पर बना दूंगा, और इस झूठे की बात को हाँ करने वाली कौन थी? वो मजलिस की क़यादत थी। दिल्ली में आंध्रा भवन में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए, अपने घर में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए, और वहां से टेलीफोन करके यहाँ के मुकामी अखबार ने ये बात पर छपाया कि हमने पीवी नरसिम्हा राव से वादा कर लिया है और पीवी नरसिम्हा राव ने हमको वादा दे दिया है। कहाँ गया तुम्हारा वादा? और 25 साल के बाद में पीवी नरसिम्हा राव मरने के 10 साल के बाद में यहाँ पर ऐवान असेंबली में अगर उनके लड़के गड़बड़ करते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ कौम को गुमराह करने की बात है। आज की तारीख तक भी आप बदलाओ, क्या बाबरी मस्जिद का कोई मसला ऐवान पार्लियामेंट में उठ रहा है? कल ऐवान पार्लियामेंट चल रही थी, लेकिन बाबरी मस्जिद का कोई मसला, कोई गुफ्तगू नहीं हुई। आज ना तो पार्लियामेंट में ना तो असेंबली में धीरे धीरे करके इस मसले को भुला देने की कोशिश की जा रही है, और ये समझ रहे हैं कि शादी खाना नहीं देंगे, कोई ग्राउंड का परमिशन नहीं देंगे, तो क्या दक्कन के मुसलमानों के ज़हनों में से, क्या दक्कन के मुसलमानों के दिलों में से बाबरी मस्जिद का गम चले जाएगा? बाबरी मस्जिद का गम मुसलमानों के दिलों में, मुसलमानों के ज़हनों में क़यामत तक रहेगा। अगर हम बाबरी मस्जिद नहीं बना सकेंगे, हम आने वाली नस्ल को ये वादा करेंगे कि अगर तुम हमारी औलाद है, हमारी नस्ल है, तो याद रखो तुमको बाबरी मस्जिद के मसले पर जिद्दोजहद करना होगा। बाबरी मस्जिद को इसी मुकाम पर बनाए रखते हिंदुस्तान का मुसलमान अपने आप को कमजोर समझेगा, अपने आप को अल्लाह के सामने शर्मिंदा महसूस करेगा। याद रखो, उसी किस्म से आज हैदराबाद में एक नई साजिश की जा रही है कि बाबरी मस्जिद को कमजोर करने के लिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को परमिशन नहीं दिया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, कमिश्नर ऑफ पुलिस को यह वार्निंग दी जा रही है कि अगर तुम बाबरी मस्जिद का परमिशन किसी को देंगे तो हम तुम्हारे खिलाफ में साजिश करेंगे, हम तुम्हारे खिलाफ में करेंगे। जहां पर सेकुलर हिंदू चाहता है कि बाबरी मस्जिद की तहरीक चले, एहतजाज हो, लेकिन मुस्लिम क़यादत नहीं चाहती है कि बाबरी मस्जिद की तहरीक चले और एहतजाज हो। खैर ठीक है, जो होगा हम उस हालात में एहतजाज करने के लिए तैयार है। मैं अपनी तकरीर को खत्म करते हुए आप लोगों से अपील करूंगा, क्या मुट्ठी भर ही सही है, हम मुट्ठी भर सही है, लेकिन याद रखो कल के दिन हम अल्लाह के पास रुसवा नहीं होंगे। हम हमारे अल्लाह को कह देंगे कि अल्लाह हमारे जितना हो सकता था हमने एहतजाज किया। हम अपने अल्लाह से कह देंगे कि अल्लाह हमने तेरी मस्जिद को बचाने के लिए जितना हमसे ताकत, उससे ज्यादा हमने एहतजाज किया, उससे ज्यादा हमने किया। जिस वक्त फैसला आया, 30 सितंबर के दिन फैसला आया, मैंने टीवी पर फैसले को देखकर मुझे बहुत बेचैनी हुई, और मैं ये जान रहा था कि मैं सोच रहा था कि जैसे ही फैसला आएगा, लखनऊ हाई कोर्ट का फैसला आएगा, हिंदुस्तान के मुसलमान पूरे सड़कों पर आ जाएंगे। लेकिन 1 महीने पहले से ये टीवी चैनलों पे आ रहा था कि अगर फैसला तुम्हारे खिलाफ नहीं आएगा, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा हम खटखटाएंगे, मुसलमान एहतजाज करने की जरूरत नहीं है। तो ये मैं जब ही मुझको डाउट आ गया कि मुस्लिम क़यादत को ये मालूम हो चुका है कि फैसला क्या आने वाला है, और फैसला वैसे ही आया, मुसलमानों के खिलाफ फैसला आया। हिंदुस्तान में कोई एक तंजीम का नाम बदलाओ, एक मुस्लिम लीडर का नाम बदलाओ जिसने रोड पर निकलकर एहतजाज किया। अल्लाह ने सिर्फ और सिर्फ मजलिस बचाओ तहरीक को इस बात का एजाज दिया है कि हिंदुस्तान में इस 30 सितंबर के फैसले को, 30 सितंबर 2000 के फैसले को कोई ने एहतजाज नहीं किया। काबिल मुबारकबाद है तहरीक के लोगों, तहरीक के चाहने वालों, कल के दिन मेरे दिल में बेचैनी हो रही थी, मेरे दिल में एक किस्म की बेचैनी हो रही थी। मैंने सोचा कि अगर मैं एहतजाज नहीं करूंगा तो मैं मेरे अल्लाह को क्या चेहरा बताऊंगा, अगर मैं एहतजाज नहीं करूंगा मैं मेरे वालिद को क्या चेहरा बताऊंगा। मेरे वालिद ने इसी बाबरी मस्जिद के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। चाहते तो अगर उनकी शेरवानी पकड़कर सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी की रहते तो जिंदगी भर क़यामत तक एमएलए रहते, जिंदगी भर एमएलए रहते। लेकिन मेरे वालिद मरहूम अमानुल्लाह खान ने अपनी एमएलएशिप को, अपने ऐशो आराम को इसी बाबरी मस्जिद के मसले पर इख्तिलाफ करते हुए लात मारा और सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी से इख्तिलाफ किया। मैंने कहा कि अगर मैं एहतजाज नहीं करूंगा तो मैं दुनिया वालों के सामने क्या सूरत बताऊंगा कि मजलिस बचाओ तहरीक की बुनियाद खुद है,
बाबरी मस्जिद की बाजियाबी के लिए है। मंजलिस बचाओ तहरीक की बुनियाद क्या है बताइए। मंजलिस बचाओ तहरीक की बुनियाद खुद बाजियाबी बाबरी मस्जिद की है, की तहरीक है। मंजलिस बचाओ तहरीक बाजियाबी बाबरी मस्जिद की तहरीक है। मैंने निकल कर रोड पर, मेरे साथ तकरीबन 4 या 5 लोग थे, हमारा स्टाफ रशीद खान और तहरीक के दीगर कायदीन, हमने निकल कर एहतजाज किया। हिंदुस्तान में क्या कभी ऐसा वाकया हुआ कि किसी जजों के पुतलों को नजरे आतिश किया गया? जब जज ने ऐलान किया कि हम